اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آج آپ کی خدمت میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کی روشنی میں بچوں کی اولاد کی تربیت کا عنوان لے کر حاضر ہوں۔ یقیناً یہ بہت عظیم اور بہت بڑی ذمہ داری ہے والدین کی کہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں۔ یہاں پر سوال آتا ہے کہ تربیت کرنے کے لیے، اسلامی تربیت کرنے کے لیے بہترین نمونہ عمل، بہترین نسخہ، بہترین روش کون سی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اگر ہم قرآن و اہل بیت سے تربیت کی روش نہ لیں تو ظاہر سی بات ہے ہر انسان اپنے اعتبار سے سوچے گا ایک روش جیسے کہ سماج میں ہو رہا ہے۔ لہٰذا بہتر ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی اسلامی اور فاطمی تربیت کریں تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی سے، ان کی سیرت سے بچوں کی تربیت کرنے کے عظیم پہلو بھی سیکھیں۔ اور اس سے پہلے کہ اصل گفتگو پر میں جاؤں، آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اولاد کے سلسلے میں دو چیز بہت اہم ہے اور بعض لوگ انہی دونوں میں کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ ایک تربیت ہے، ایک پرورش ہے۔ ہمارے سماج کے اکثر والدین، ماں باپ کی زیادہ تر توجہ بچوں کی پرورش پر ہوتی ہے۔ پرورش یعنی اچھی غذا دینا، اچھا ماحول دینا، اچھا لباس پہنانا، ان کی صحت کا خیال رکھنا، ان کے جسم کا گروتھ اچھا ہو، یہ ساری چیزوں کا تعلق پرورش سے ہے۔ اور پرورش میں انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک انسان ایک جانور کی بھی پرورش کرتا ہے اور اپنے بچے کی بھی پرورش کرتا ہے، اور معمولاً ہمارے سماج میں تربیت کے نام پہ بچوں کی پرورش ہو رہی ہے۔ تربیت کا پہلو خالی ہے، یعنی جو جسم اور جسمانیات اور باڈی سے ریلیٹڈ جو ذمہ داری ہے والدین کی، اسے پرورش کہتے ہیں۔ جو انسان کی شخصیت، انسان کی روح، انسان کے شعور، انسان کے دین اور انسان کے اہمیت سے ریلیٹڈ جو ذمہ داری ہے والدین کی، اسے تربیت کہتے ہیں۔ تو معمولاً ہمارے سماج کے والدین پرورش پہ تو توجہ بہت کرتے ہیں، لیکن تربیت سے توجہ نہیں ہو پاتی۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بہترین دیندار، بعمل، صاحب ایمان اور سماج میں بہترین اچھی اولاد ہو، تو لہٰذا گزارش ہے کہ ہماری ذمہ داری اسی اعتبار سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں، دوسرا ہے کہ ہمارے پاس بہترین نسخہ ہو۔ تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت سے بہتر کوئی نسخہ نہیں ہے، اور اس کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے کافی ہے۔ اور یاد رکھیں، بہترین کوچ وہی ہوتا ہے، یعنی بہترین تربیت کرنے والا وہی ہوتا ہے جس کی بہترین تربیت ہوئی ہوتی ہے۔ اگر تربیت بہترین نہیں ہوئی تو وہ بہترین تربیت نہیں کر سکتا۔ دوسرے لفظوں میں کہہ دوں، بہترین کوچ کرکٹ کا ہو، فٹ بال کا ہو، یا کسی سماج میں، جو میں جوانوں کے لیے مثال دے رہا ہوں، کہ بہترین کوچ وہی ہوتا ہے جو اپنے وقت کا بہترین کھلاڑی ہوتا ہے۔ لہٰذا پھر مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، بہترین مربی، بہترین تربیت کرنے والا اپنے بچوں کا وہی ہوگا جو اپنے زمانے میں بہترین تربیت یافتہ رہا ہو۔ اور کسی خاتون کو دیکھنے کے لیے، کسی خاتون کی شخصیت کو دیکھنے کے لیے تین پہلو ہوتے ہیں: بیٹی کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے۔ کسی خاتون کی شخصیت کو دیکھنا ہے، لہٰذا چنانچہ بیوی فاطمہ کی شخصیت کو دیکھنا ہے کہ تربیت یافتہ کس حد تک تربیت یافتہ ہیں۔ تو اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں کی تربیت یافتہ ہیں، اور خود اپنے لیے نبی کریم فرماتے ہیں، ادبنی ربی فحسن تادیب، میری تربیت میرے رب نے کی ہے۔ یعنی جس کی تربیت اللہ نے کی ہے وہ اپنی بیٹی کی تربیت کر رہا ہے، تو جناب فاطمہ کی تربیت کا کیا عالم ہوگا۔ شاید اسی لیے نبی کریم نے فرمایا، ام ابیہ، فاطمہ ام ابیہ،
यानी तरबियत के जौहर दिखलाए तो उम्मे अबिया बनी। और जब यही फातिमा दूसरे पहलू से अगर किसी की तरबियत को देखना है, किस हद तक तरबियत याफ्ता है, तो उसको ज़ौजा के एतबार से देखें। बीवी फातिमा को देखना है तो मौला कायनात के घर में देखें। और एक बाप अपने बेटी के बारे में सवाल कर रहा है, या अली कैफ़ वजदत फातिमा, फातिमा को कैसा पाया। कौन बाप अपनी बेटी के बारे में अपने दामाद से पूछेगा, बेटी के शौहर से पूछेगा, जिसको अपनी तरबियत पे भरोसा होगा। मौला कायनात फरमाते हैं, नेमल आन अला तातिल्लाह, अल्लाह की इताअत में बेहतरीन मददगार है। या मौला कायनात प्राउड कर रहे हैं, अना ज़ौज फातिमा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, मैं ज़ौजे फातिमा हूँ, मैं हमसर फातिमा हूँ, मैं फातिमा का शौहर हूँ। यानी इस मकाम पे तरबियत है कि मौला कायनात अपने लिए प्राउड कर रहे हैं, इफ्तिखार कर रहे हैं कि मैं फातिमा का शौहर हूँ। फिर अगर बीवी फातिमा की तरबियत का जलवा देखना है तो इसके लिए इतना काफ़ी है, आपके तरबियत याफ्ता जिनको तरबियत की है वो इमाम हसन, इमाम हुसैन हैं, जनाब ज़ैनब हैं, जनाब उम्मे कुलसूम हैं। अगर ख़ुद सैयदतुन निसाइल आलमीन हैं तो जिनकी तरबियत की है वो सैयद शबाब अहलिल जन्ना हैं। और तरबियत कभी कौल के ज़रिए होती है, यानी बयान करके, प्रोग्रामिंग करके, और कभी तरबियत खुद अपने अमल से होती है। बीवी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने बच्चों की तरबियत यानी ख़ास तवज्जो के ज़रिए भी की है और अपने अमल के ज़रिए भी की है। चुनांचे मौला बीवी दो आलम मुसल्ले पर दुआएं मांग रही हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम सवाल करते हैं, मादर गिरामी हमेशा आप गैरों के लिए दुआएं करती, अपने लिए नहीं, तो बीवी क्या फरमाती, अलजार सुम्मतदार, यानी ख़ुद बीवी का अमल। जबकि इमाम हसन जानते थे शायद ये हकीकत को इंकशाफ करने के लिए फरमाते हैं। इसी तरह अमली लाइफ में ख़ास तवज्जो इमाम हसन, इमाम हुसैन को तैयार करके मस्जिद नबवी में भेजते थे, बच्चों जाइए नाना खुतबा दे रहे हैं। और जब ये बच्चे मस्जिद नबवी से खुतबे के इख्तिताम के बाद घर में तशरीफ़ लाते थे तो बीवी फातिमा दो आलम पूछती थी, आज नाना ने क्या फ़रमाया। और उसी तरह बयान करते थे इमाम हसन, इमाम हुसैन, जिस तरह नबी करीम मस्जिद में बयान करते हैं। चुनांचे जब मौलाई कायनात आते थे तो बीवी फातिमा फरमाती थी, आज बाबा ने ये फरमाया है, आज बाबा ने ये फरमाया है, ये फरमाया है। तो मौलाई कायनात पूछते हैं, शहज़ादी है, नबीज़ादी, आपको कैसे पता। अलबत्ता ये सब इंकिशाफ है, मौलाई कायनात को पता है, कैसे पता है, या बीवी फातिमा को किसी वसीले की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सारा चूँकि तरबियत का एक शेवा, एक अंदाज़, एक रविश देनी है, लिहाजा मौलाई कायनात सवाल करते हैं। बीवी फातिमा फरमाती हैं कि आपके फ़र्जंद बयान फरमाते हैं। तो मौला कायनात फरमाते हैं उसी तरह बयान फरमा रहे जिस तरह नबी करीम मस्जिद में बयान करते हैं। और इतना ज़्यादा मुतमन्नी होते हैं, इतना ज़्यादा मुश्ताक हो जाते हैं कि इन बच्चों के बयान को ख़ुद मौला कायनात सुने। गोया एक तरबियत करने वाला अपने तरबियत याफ्ता के हुनर को देखना चाहता है, लिहाजा एक दिन मौला कायनात पहले आ जाते हैं और हस्ब दस्तूर बीवी दो आलम सवाल करने लगती हैं बच्चों से, और बच्चे बयान करना शुरू करते हैं। ज़बान में लुकनत आती है, लड़खड़ाहट आती है, और पूछती हैं तो कहते हैं, मादर ग्रामी ऐसा लग रहा है कोई मुझसे अजीम, कोई मुझसे बड़ा मेरे बयान को सुन रहा है। चुनांचे मौलाई कायनात बाहर आते, कहते सद्दकना बच्चों, तुमने उसी तरह बयान किया जिस तरह नबी करीम बयान फरमाते हैं या बयान किया था। तो एक अमल के ज़रिए से तरबियत होती है और एक ख़ास तवज्जो। और इसी की तरह याद रखें, जो अजीम शख्सियतें होती हैं, ख़ास तौर से बीवी दो आलम जो सैयदतुन निसाइल आलमीन हैं, यानी तमाम ख़वातीन की सरदार हैं, तो फिर उनका मकसद भी कोई सिर्फ़ अपने बच्चे नहीं होते कि सिर्फ़ अपने बच्चों की तरबियत कर ली, कामयाब हो गए। ये हम लोगों का नज़रिया होता है। हम अगर अपने घर की तरबियत कर लेते हैं, अपने घर के माहौल को बना लेते हैं, अपने बच्चों की तरबियत कर लेते हैं, तो इसी में अपनी कामयाबी समझते हैं। लेकिन जो अजीम ज़ात होती है, जो अजीम शख्सियतें होती हैं, उनका मकसद पूरी कौम होती है, पूरी इंसानियत होती है, बशरियत होती है। और अपने आप को कामयाब तभी समझते हैं जब पूरी कौम, पूरी बशरियत कामयाब हो।
लहٰज़ा इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्ना अत्फ़ाल शियतना मिनल मोमिनीन तुरब्बीहिम फ़ातिमा, यानी हमारे शियों के बच्चे जो मोमिनीन में से हैं उनकी तरबियत गोया बीवी फ़ातिमा फरमाती हैं। तो मुझे कहने की इजाज़त दीजिए, यानी अपनी सीरत से नुस्खा दे रही हैं और वालिदैन से कह रही हैं अपने बच्चों को, अपने बच्चों की तरबियत हमारे बताए हुए उसूल पर, फ़ातिमी बताए हुए उसूल पर तरबियत करो। गोया ये तरबियत तुम नहीं कर रहे हो, हम कर रहे हैं। बल्कि मुझे कहने की इजाज़त दीजिए, यानी 2 शर्त लगाई है, इन्ना अत्फ़ाल शियतना, मेरे शिया, यानी अगर तुम चाहते हो, यानी तुम चाहते हो कि मेरे बच्चों की तरबियत अच्छी हो तो अपने आप को हमारा शिया बना लो और मोमिन यानी तमाम फ़राइज़ अंजाम देते रहो। तो याद रखना, अगरचे ज़ाहिर में तुम्हारी बीवी के दामन में तुम्हारे बच्चे अपनी माँ के दामन में तरबियत पा रहे होंगे, लेकिन हकीकत में यह आगोश फ़ातिमा होगी। तो फिर मुझे कहने की इजाज़त दीजिए, जिन बच्चों को आगोश फ़ातिमा की गर्मी मिल जाए, उनकी तरबियत का माहौल मिल जाए, वो कितने तरबियत याफ्ता होंगे। बस शर्त यह है कि हम अपने आप को मोमिनीन में और उनके शियों में शामिल कर लें। तो एक अजीम, हमने अर्ज़ किया था कि जो अजीम ज़ात होती है उनका मकसद अजीम होता है, एम अजीम होता है। पूरी इंसानियत, पूरी बशरियत, पूरी कौम, पूरी उम्मत के बच्चे अपने बच्चों की तरह नज़र आते हैं। वही दर्द होता है, वही गम होता है, वही ज़िम्मेदारी होती है, वही हेजिटेशन होता है, वही परेशानी होती है कि किसी तरह ये बच्चे कामयाब हो जाए। यह लिहाज़ा बीवी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा भी अपनी कौम, बशरियत सब के लिए परेशान है, सबके बच्चे इसी तरह कामयाब हों। और इसी तरह आखिरी बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, जब इस तरह की अजीम ज़ात होती है जिसकी नज़र में, जिसका मकसद तमाम बशरियत होती है, इंसानियत होती है, तो फिर वो किसी एक के लिए आइडियल नहीं होती, सिर्फ़ अपने बच्चों के लिए आइडियल नहीं होती, अपने घर के लिए आइडियल नहीं होती, बल्कि पूरी कौम, पूरी बशरियत, पूरी इंसानियत के लिए होती है। और ऐसे वैसे नहीं, वक्त के आखिरी इमाम ज़माना के लिए आइडियल है। इसीलिए तो फरमाते हैं, फ़ी बिन्त रसूलिल्लाह ली उसवतुन हसना, नबी ज़ादी की ज़िंदगी मेरे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। जब वक्त का इमाम फरमाए तो इसका मतलब हर शख्स के लिए, हर उम्मती के लिए, असर ग़ैबत में हर जीने वाले के लिए बीवी दो आलम की ज़ात एक बेहतरीन नमूना है, ख़ास तौर से माँ बाप के लिए और ख़ास तौर से मादर गिरामी के लिए, हर बच्चों की माँ के लिए बीवी दो आलम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। लिहाजा हम तमाम ख़वातीन की खिदमत में दस्तबस्ता गुजारिश करते हैं कि कोशिश करें अपने बच्चों की तरबियत बीवी फ़ातिमा के बताए हुए उसूल, फ़ातिमी सीरत के मुताबिक करें, क्योंकि आने वाले वक्त में फ़ातिमी औलाद को ऐसे हमकार की ज़रूरत है, ऐसे मददगार की ज़रूरत है। जब नुस्खा अच्छा होगा, अंदाज़ अच्छा होगा तो बरकतें भी होंगी। हमें उम्मीद है कि हम बीवी फ़ातिमा की ज़िंदगी से दर्स लेंगे और अपने बच्चों को बेहतरीन मुस्तक़बिल देंगे।